تیسرا اس میں کیا احکامات دیے ہیں اللہ تعالیٰ، اور چوتھا اس میں کیا منع کیا۔ آپ کو کتنے نام مل چکے ہیں؟ مجھے 9 9 مل چکے ہیں۔ دیکھنا یہ ذرا اس کی آیت نمبر 4 نیکسٹ قرآن پاک پڑھا جائے گا، اس کی ساری ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے۔ تو کہاں لے کے جاتے ہیں صفحے؟ یہ صفحے جی ہم مسجد سے اٹھاتے ہیں اور ادھر ہی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ظفر جمیل صاحب کیا حال ہے سر آپ کی؟ خیریت سے؟ تو یہ اس طرح بچے لکھ کے روزانہ کی بنیاد پر یہ لکھا جاتا ہے۔ السلام علیکم جی، یہ گورنمنٹ اسلامیہ اسکول وہاڑی میں قرآن کلاس چل رہی ہے ایک رمضان المبارک کے حوالے سے۔ تو ہم یہاں بچوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس کی کیا ڈیٹیل ہے، کیسے یہ سب چل رہا ہے۔ السلام علیکم جی، کیا نام ہے آپ کا؟ زین جی، کیا ہو رہا ہے؟ یہ قرآن کلاس ہو گیا ہے۔ اچھا، تو کیسے ہوتی ہے تھوڑا سا بتائیں گے ہمیں؟ یہاں پہ اسکول میں جو بچے حافظ ہیں وہ عربی پڑھتے ہیں اور اسکول کے ٹیچر وہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ کتنے سالوں سے یہ ہو رہی ہے؟ یہ 3 سالوں سے ہو رہا ہے، 3-4 سال۔ اچھا، آپ بھی ادھر آ جائیں۔ اچھا، تو آپ کتنے سالوں سے اٹینڈ کر رہے ہو؟ میرا یہ دوسرا سال ہے۔ دوسرا سال ہے۔ السلام علیکم جی، آپ کا کیا نام ہے؟ عبد المعید جی، کیا ہو رہا ہے ہمیں تھوڑا سا بتائیں اس یہ ہماری قرآن کلاس ہو رہی ہے، یہاں پہ جو عربی ہوتی ہے یہ حافظ صاحب حافظ ہوتے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، اور ترجمہ ہمارے پرنسپل۔ آپ کتنے سالوں سے یہ کر رہے ہو؟ میں 3 سال ہو گیا، مجھے تیسرا سال تو ہے۔ کیا سیکھا آپ نے سب سے؟ میں نے یہاں سے اسلامہ اسکول بہت اس معاملے میں بہت اس کی ترقی کرنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ دین سے زیادہ اٹیچ ہے، ہر اسکول کو یہی اٹیچمنٹ ہونی چاہیے دین کے ساتھ۔ اچھا، تو یہ بس یہ کلاس جب قرآن پڑھ لیں گے تو اس کے بعد یہ تلاوت ختم اور بس چھٹی؟ نہیں، آگے اس کے بعد تربیت بھی ہماری کی جاتی ہے مکمل طور پہ، اسٹڈی بھی کی جاتی ہے۔ نہیں تو اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر؟ اس کے بعد جو پرنسپل صاحب اگلے پارے کا خلاصہ بتاتے ہیں، ہم اسے نوٹ کرتے ہیں۔ اگلے پارے سے جو کل پڑھنا ہوتا ہے؟ جو کل پڑھنا ہوتا ہے وہ اس کا خلاصہ بتاتے ہیں، پھر ہم اسے نوٹ کرتے ہیں۔ جو ہم نے پرانے پارے کا وہ لکھا ہوتا ہے اس کے انعامات پرنسپل صاحب دیتے ہیں، جس بچے نے اچھا لکھا ہوتا ہے اس کو انعامات ملتے ہیں، اور پھر آخر میں دعا کرواتے ہیں۔ اچھا، آپ کا کیا نام ہے؟ منیب الرحمان۔ کیا لکھنا ہوتا ہے آپ نے یہ جو لکھتے ہیں؟ جو پرنسپل صاحب قرآن پاک پڑھاتے ہیں ان میں سے ہم نے ٹوٹل 5 سوال ڈھونڈے ہوتے ہیں۔ پہلا اس بار کا تعارف کیا ہے، دوسرا ہم نے اس میں کیا سیکھا، تیسرا اس میں کیا احکامات دیے ہیں اللہ تعالیٰ، اور چوتھا اس میں کیا منع کیا گیا ہے۔ آخر میں جو خلاصہ پرنسپل صاحب بتاتے ہیں وہ لکھنا ہوتا ہے۔ آپ کو کبھی انعام ملا ہے؟ کتنی دفعہ مل چکا ہے؟ میرے 17 انعامات ہیں۔ ماشاء اللہ۔ آپ کو بھی ملا ہے؟ آپ کو کتنے انعام مل چکے ہیں؟ پچھلی بار مجھے 7 ملے تھے، اس بار مجھے 1 ملے۔ ایک ملا ہے؟ میں نے 1 بار لکھا تھا، 1 بار ملا۔ دوبارہ بھی لکھے محنت کرے۔ آپ کو کتنے انعام مل چکے ہیں؟ مجھے 9 9 مل چکے ہیں۔ چلے ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ آپ نے اس میں سارے سے کیا سیکھا ہے؟ اس میں سے ہم نے سیکھا کہ جو احکامات ہیں، مطلب کہ ہمیں کیا کام کرنا چاہیے اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ہمیں ان کاموں سے دور رہنا چاہیے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہم مومنوں کو الٹے نام لینے سے منع ہے۔ جہاں پہ تو ہم بہت الٹے نام لیتے ہیں، اب جو ہم نے پڑھا ہے اب کوئی بچہ الٹے نام نہیں لیتا۔ اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ گڈ۔ تو اب اس سے دعا سے پہلے جلدی سے ہم اپنا سوموار والا سبق جو ہے اسے ریپیٹ کر لیں۔ سوموار کو انشاءاللہ 1.25 پارہ کر کے ہم 28 پارے پورے کر چکے ہوں گے، اور اس کے بعد صرف ہمارے 2 دن رہ جائیں۔ تو جلدی سے ذرا دیکھیے گا، پہلا رکوع آپ کا سورہ حدید ہے، یہ اس پارے کا 17واں رکوع ہے۔ اس میں اللہ کی عظمت کا بیان ہے، ایمان لانے والوں کے اور خرچ کرنے والوں کا بیان ہے۔ دیکھنا یہ ذرا اس کی آیت نمبر 4، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا تو 2 چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس کی طرف بڑھتی ہے، سب اللہ کو معلوم ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس کو۔ اگر یہ احساس بیٹا ہمارے دلوں میں آ جائے نا تو یہ اس کے بعد زندگی بدل جاتی ہے۔ جب پتہ چل جائے کہ اللہ دیکھ رہا، پھر غلطی کو کیسے کر سکتا ہے؟ آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور سب امور اسی کی طرف جو نیکسٹ قرآن پاک پڑھا جائے گا اس کی ساری ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا رکوع یعنی 17واں 18واں رکوع یہاں جہاں سے شروع ہوگا، اس میں ایک بڑی خوبصورت ملاقات کا تذکرہ ہے، جس میں قیامت میں مومن اور منافق جب ملیں گے تو وہ جیسے آپس میں بات چیت کریں گے یا ان کی بات چیت ہوگی وہ بیان کی گئی ہے، اور اس میں صدقہ دینے کی ترغیب ہے وہ آئی ہے۔ تو یہ دیکھنا ایک آیت 14 نمبر آیت،
जब मुनाफिक लोग मोमिनों से कहेंगे कि हम दुनिया में तुम्हारे साथ थे, यानी एक ही जगह पे रहते थे, वो कहेंगे क्यों नहीं थे, लेकिन तुमने खुद अपने तई बला में डाला, यानी तुमने मुनाफिक इख्तियार की और हमारे हक में हवादस के मुंतज़िर रहे और इस्लाम में शक किया और ला तायल ना पूरी होने वाली आरज़ुओं ने तुमको धोखा दिया, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा, अल्लाह के बारे में तुम्हें शैतान दगाबाज धोखा देता रहा। इन आयात को बच्चे हाईलाइट करेंगे और इन्हीं में से अपना जो लेसन है ना जी अगला वो लिख के लाएंगे और फिर कामयाब तलबा को इनामात दिए जाते हैं। ये बच्चों को तारिक साहब ने जो उठे उन्हें बिठाए फौरन। सल्लल्लाहु अलैहि या अल्लाह हमारी दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमा, हमसे राजी हो जा, इस कुरान पाक को हमारे सीने की बहार बना दे, हमारी जिंदगी का नूर बना दे, हमारे गमों का मदावा बना दे, हमें इस पर अमल करने वाला बना दे, हमें उसकी मोहब्बत अता फरमा, हमें अपने नबी मुकर्रम की मोहब्बत अता फरमा, उनके आल और उनकी असहाब की मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह हम में से जितने ये बच्चे सफ़े सुबह आके बिछाते भी हैं और क्लास के बाद इसको उठाते भी हैं। ये वॉलंटियरली बच्चे हैं, इनसे भी बात करते हैं कि क्यों ये किस पर्पज़ के लिए ये सारा ये काम कर रहे हैं। जाना ना हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सर जी अब्दुल्ला रहीम नाम है मेरा। अच्छा, तो ये क्या कर रहे हैं आप? ये सर जी हम सफ़र उठा रहे हैं। आपकी सारी क्लास ये काम करती है? सर जी सुबह हम प्रिंसिपल साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने रमज़ान में ये नेकी का काम शुरू किया है। सुबह हम आते हैं, आगे सफ़े बजाते हैं और जब ये ख़त्म होता है तब हम सफ़े भी उठाते हैं। तो कहाँ लेके जाते हैं सफ़े? ये सफ़े जी हम मस्जिद से उठाते हैं और उधर ही क्या नाम क्या आपका? अब्दुल्ला रहीम नाम है। कौन सी क्लास है आपकी? 8 सिद्दीक शेख खातून साहब। अच्छा चले, वेरी गुड, बहुत अच्छा ये काम बेटा आप लोग करिए। सारे आपके दोस्त हैं? जी सर जी। चले जी, ये सारी क्लास माशाल्लाह जी जो सफ़े उठाते हैं और बिछाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये हाफिज़ अब्दुर्रहमान और हाफिज़ हमास हैं जो कि कुरान पाक की तिलावत करते हैं। हाँ जी अब्दुर्रहमान, आप कितने सालों से ये तिलावत कर रहे हो? 4 साल, यानी माशाल्लाह आपको 4 साल हो गए, बहुत खूब। चले जी, एक्सीलेंट। तो आप अभी भी स्टूडेंट हो या? अच्छा, नहीं स्कूल को छोड़ चुके हो या अभी भी पढ़ा रहे हो यहाँ पे? स्कूल को छोड़ चुका हूँ। अच्छा चले। हमास, आप बेटा कितने साल से पढ़ रहे हो? ये 2 साल हो गए, ये दूसरा साल है। अच्छा, तो आपको कैसा, क्यों आप ये वॉलंटियरली अपने आप को ये पेश किया हुआ, क्या इसका मकसद आपको लगता है? कुरान की दोहराई हो जाती है और मज़ा आता है यहाँ पढ़ाने में। चलो माशाल्लाह। और आप तो ज़ाहिर आप स्कूल में नहीं हो, तो फिर भी क्यों आ जाते हो आप इधर? दिल करता है कि यहाँ पे आके पढ़ाएं, शौक से आते हैं कि बच्चों के साथ बैठ के कुरान पाक पढ़ाने में एक इंटरेस्ट होता है और दोहराई भी हो जाती है और मंजिल भी पक्की रहती है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, आप दोनों बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं, वेरी गुड। अब हम प्रिंसिपल साहब के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इन चीज़ों के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ज़फ़र जमील साहब, क्या हाल है सर आपकी? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज आपके स्कूल की जो कुरान क्लास माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, उसका हमने एक छोटा सा व्लॉग बनाया है, तो उसमें हमने देखा है कि माशाल्लाह सब बच्चे अपना अपना कुरान पाक लेके उसको पढ़ रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत हो रही है। तो ये आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ है, हमें थोड़ा सा बताइएगा सर। ये आइडिया खालिस्तान इस्लामिया हाई स्कूल बिहाड़ी का आइडिया है। हमारे असातिज़ा ने ये सारी स्कीम तैयार की है और हमारे असातिज़ा ने मुख्तलिफ मराहिल में हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं। ये हमारा तकरीबन 3 स्टेजेस पे है। पहली स्टेज पे हम बच्चों को तिलावत और उसका तर्जुमा सुनाते हैं और बच्चे उसके साथ साथ अपने कुरान पे अपनी उंगली रख के और उसको पूरे ध्यान से सुनते और उसे समझते हैं। दूसरे मरहले पर जो आगे पढ़ने वाला पारा होता है हम उसका खुलासा बताते हैं। तीसरे मरहले पर बच्चों ने जो पढ़ा होता है उसके मुतल्लिक 5 सवालों का जवाब देते हैं। जो पढ़ा है उसका तारुफ, जो उससे सीखा उसकी तफसील, जिन अहकामात से मना किया गया वो तस्करा करने हैं और जिनका हुक्म दिया गया वो बयान करने हैं और आखिर में इस पारे का खुलासा बयान करना होता है। इस बुनियाद पर हमारे बच्चों का तहरीरी मुकाबला होता है और बच्चे इस तरह उस तहरीरी मुकाबले का पार्ट बनते हैं। तो ये इस तरह बच्चे लिख के रोज़ाना की बुनियाद पर ये लिखा जाता है। क्लासेस के पोजीशन होल्डर्स जो हैं उनके पेपर्स यहाँ जैसे मेरे पास हैं यहाँ आते हैं
और फिर इनमें हम उनके इनामात की तकसीम बनाते हैं। तो इन स्टेजेस पर ये मुश्तमिल है ये सिलसिला। तो सर इसके क्या समरात आपने बच्चों में देखे, कोई इफेक्ट्स इसके क्या आप देखते हैं कि बच्चों में इसका बहुत असर ज़्यादा हो रहा है? सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो कुरान के साथ हमारा ताल्लुक बहसीयत कौम ख़त्म हो रहा था, वो अल्हम्दुलिल्लाह रिवाइव हो रहा है। हमारे बच्चों के पास अपना कुरान है, वो डेली उसे लेकर आते हैं। और हम जो ये गिला करते नज़र आते हैं कि हमारे बच्चे सोशल मीडिया की तरफ मुतवज्जो होते हैं, तो पहली दफ़ा मैंने देखा है कि अगर हम उन्हें किसी पॉजिटिव सरगर्मी में डालें तो वो बड़ी दिलचस्पी से उसका हिस्सा बनते हैं। तो हर रोज़ बच्चे अपना कुरान पाक लेकर आते हैं, उससे पढ़ते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, हाईलाइटर से उसके ऊपर निशान लगाते हैं, उसके लिए नोट्स तैयार करते हैं और उसे पूरी तरह समझने के लिए तैयार होते हैं। इस तरह उनकी ज़िंदगियों को कुरान से वाबस्ता करने का हमें मौका मिल रहा है। और मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हमारी नई नस्ल कुरान से वाबस्ता हो रही है। एक्सीलेंट। तो सर आपका फ्यूचर प्लान इसके हवाले से क्या है? इसके हवाले से हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि हम कुरान की छोटी छोटी असाइनमेंट अपने बच्चों को दे रहे हैं, वो इस पर अपनी रिसर्च करके लाएं। हमारे छठी के बच्चों ने रिसर्च किया, इसकी कौन सी आयत हैं, कहाँ पे कौन सी आयत पाई जाती है। इसी को हम एक्सपैंड करना चाहते हैं कि हम सारा साल बच्चों को कुरान पाक के हवाले से मुख्तलिफ असाइनमेंट्स दें, वो इस पे अपने छोटे छोटे से रिसर्च पेपर तैयार करें और इसके बारे में ये जान लें कि अल्लाह कुरान पाक में हमसे क्या चाहता है। हम सिर्फ कुरान पाक को पढ़ने तक महदूद ना रहें, बल्कि इसे समझने और अपनी जिंदगियों में लाने वाले बन जाएं। ये हमारे इस हवाले से फ्यूचर सर सारे साल से क्या मुराद? डेली आप हर रोज़ इसको पढ़ाएंगे तो बच्चों की तालीम का हर्ज और मौसमी मामलात? अब तक भी हमने जो कोशिश की है उसमें कभी हमारे जो तालीमी दूसरी सरगर्मियाँ वो इससे मुतासिर नहीं होती। ये हमारा तर्जुमतुल कुरान का पीरियड है, उसके साथ हम इस सरगर्मी को अटैच किए हुए हैं। सारा साल हम उसे पढ़ते हैं और यहाँ हम रमज़ान में आके इसका दौरा कुरान मुकम्मल करते हैं। तो आइंदा भी इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर करेंगे, लेकिन इस तरह करेंगे कि इसमें हमारा एक्स्ट्रा वक्त में ये काम हो, इससे हमारी तालीमी सरगर्मी मुतासर ना हो। तो सर इसमें भी जो आपकी कुरान क्लास चल रही है, बच्चे को पहले आते हैं स्कूल्स के टाइमिंग से या इसका कोई आपने क्या शेड्यूल बनाया हुआ है? हाँ जी, ये हमारा बिल्कुल, इसमें हमने पूरी कोशिश की है कि इसमें हमारे बच्चों की तालीमी सरगर्मी मुतासिर ना हो, वक्त से पहले आकर, और जो हमारा असम्बली का और तर्जुमतुल कुरान का पीरियड है उसमें ये पीरियड मुकम्मल हो जाए। एक्सीलेंट सर, चले बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इस सारे काम की जज़ा दे जी। बहुत अच्छा काम माशाल्लाह आप कर रहे हैं। एक्सीलेंट।